Hello friends, welcome back to my channel English with Menika. How are you doing all? Hope you all are doing great. So ये सुबह का समय है. Good morning. Actually, you know what? I wanted to record video. मैं 3-4 दिनों से कोशिश करी हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, जब मैं तैयार होती हूँ मेंटली एंड फिजिकली, एंड माई डॉटर सी स्टार्ट क्राइंग इन दिस डेज, शी इज़ नॉट फीलिंग गुड, आई कैन सी. क्योंकि जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चे के साथ कितना प्रॉब्लम होता है. दैट्स वाई इट्स ओके. सो व्हाट आई वाज फीलिंग कि लेट्स record the video on rooftop. So this is morning time. I was just walking on the rooftop half an hour ago. Then I thought, let me record the video. Then I bought all the things and I started recording. So let's see. So how are you doing? I hope you all are doing great. And how is your practice going on? I think you are practicing your English every single day in a great way. Okay, so let's come to the today point. And what is the today topic? It's not any kind of a specific topic, but it's very simple. How to start speaking simple English. Yes, being a beginner, we all want to speak English. Okay, we want to start, but we don't know how to start it. We are just running behind the words, sentences, idioms, phrases. But although we learn all the things, but still we are in a dilemma. We have lots of confusion. We start overthinking how to start speaking. Yeah, all the time we have a just fear of making mistake, fear of what people think about my broken English. So these thought coming in our mind often and often. So what you have to, guys, what you have to do, you should start speaking basic English. How? It's very simple, very easy. You can say it's easy peasy lemon squeezy. Like आप कुछ भी कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट यू हैव टू डू absorb the object and tell the मीनिंग ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स. लाइक अगर आप स्टडी रूम में हैं, ठीक है, जितने भी सारी चीज़ों को आप एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, वट एवर द ऑब्जेक्ट अवेलेबल ओवर देयर, लाइक टेबल, चेयर, पेंसिल, कॉपी, बुक्स, या स्टैंड एंड बॉटल, जो भी चीज़ें आपके आसपास में है, डायरी, देन यू हैव टू स्पीक सिंगल वर्ड, ऑल द सेंटेंस सिंगल वर्ड, एंड ट्राई टू frame small sentence like book. Here is my book. I am reading this book. This is my favorite book. Where is my pen? I can't find my pen. And I want to write with that pen. Yes. And if I talk about like where is my phone? Please give me my phone. And who is calling me? आप कुछ भी कर रहे हैं तो उससे पहले वर्ड देखिए, उसके बाद उसे सेंटेंस फॉर्मिंग कीजिए. ये बहुत अच्छा तरीका है. यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. लाइक जब आप खाना खा रहे हो तो क्या क्या सेंटेंस आ सकते हैं आपके दिमाग में. पहले यू हैव टू स्पीक ऑल द इंग्लिश वर्ड रिलेटेड द ऑब्जेक्ट, लाइक राइस, पल्स, वेजिटेबल, पॉपिडम, चपातीस, है ना, वाटर एंड फ्रूट, सैलड. जो भी चीज़ें खा रहे हैं आप कोशिश करें. जैसे मान लीजिए आप अचार का इंग्लिश में नहीं जानते हैं, व्हाट डू यू से इन इंग्लिश, हाउ टू इंग्लिश नेम ऑफ अचार, देन यू हैव टू फाइंड ऑन गूगल. या पिकल, इट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ अचार इज पिकल. तो आप जिसका नहीं जान रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे खाना खाने के बाद देखिए कि उसको क्या बोलते हैं. आप सिंपली गूगल में बोलना अचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ यू विल से इन इंग्लिश, देन इजली दे विल मेंशन. So and now you have to frame the sentence. I am eating rice and I am drinking water and I like to eat pickles in my meals, yeah, in my lunch time, है ना. And it's very tasty, delicious food. It is little bit spicy. I don't like spicy food, है ना. तो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मिंग कीजिए और पहले उसका वर्ड्स जानिए एंड यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस. सो गाइज, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टार्ट स्पीकिंग वेरी सिंपल इंग्लिश. डोंट रन बिहाइंड फैंसी वर्ड, डोंट लर्न ओनली एडवांस वर्ड. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दोज वर्ड इन योर कॉन्वर्सेशन, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग दोज वर्ड. ओके, सो टेक बेबी स्टेप, बट go gradually, but still, but be consistent with your work. Every single day you have to learn, you have to speak. Okay, whatever the thought coming, don't overthink,
don't demotivate yourself and don't just overlook your talent. I can say everyone can do the work. लेकिन होता है क्या कि कभी कभी हमारे साथ सिचुएशन ऐसे हो जाती है ना कि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, तो उस समय डिमोटिवेशन आता है। मेरे साथ भी होती है, लगता है छोड़ दे, चलो हटाओ, ये सब क्या हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, मैं इधर के कर पा रही हूँ न उधर के कर पा रही हूँ, बहुत बार मेरे दिमाग में आता है। लेकिन फिर व्हाट यू हैव टू अनदर ऑप्शन? नो, नथिंग, बिकॉज इफ़ यू आर अ फॉन्ड ऑफ दिस थिंग एंड व्हेन यू आर गोइंग टू लेफ्ट इट, सो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, है ना। देन ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में स्टक करता है। फिर लगता है नहीं, हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अगर हमें मैनेज करना आना चाहिए और सब चीज़ों के साथ थोड़ा थोड़ा करके जब चीज़ें ठीक हो जाती तो आपको फिर से शुरू कर देना चाहिए, है ना। सो थैंक यू सो मच, thank you so much. I hope you enjoy this video, and I will try every single day, and morning time I am feeling fresh and मुझे अच्छा फील हो रहा था, तो मैं सोची चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरा दिन भी इंतज़ार करते रहती हूँ कि चलो वीडियो रिकॉर्ड करते, वीडियो रिकॉर्ड। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए मेंटली एंड फिजिकली रेडी होती, तो मेरी बेटी कभी सोने के लिए तैयार नहीं होती है, कभी बैठने नहीं देती है, तो कभी रोने लगती। मतलब ये आजकल उसकी जो एक्टिविटी है ना, एक से एक चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रही। लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि कोई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे इस स्टेज में थोड़ी थोड़ी हरकतें करने लगते हैं, तो उस चीज़ को समझना पड़ता है और हमें उन्हें टाइम देना पड़ता है, इसी की वजह से। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप you like, then please like my video, subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much. Bye bye.